السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Over to Zarina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima انکا حمید مجید۔ آمین۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمبر 2، سورہ البقرہ، پارہ نمبر 3، آیتیں ہوں گی 257 آنورڈز انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3، سورت البقرہ، آیت نمبر 257 سے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہے 255 ہم نے پڑھے تھے آیت الکرسی۔ کتنے لوگوں پر آیت الکرسی کا امپیکٹ ہوا؟ جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں سو مومنٹریلی امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کے لیے اب آیت الکرسی بہت زیادہ فیوریٹ بن گئی ہے، اس سے وہ کتنا پڑھنے لگے ہیں اور کتنا یقین بڑھ گیا ہے؟ یہ کوئی بتائے گا مجھے؟ بیکاز ویری امپورٹنٹ، یہ نہیں ہو کہ ہم بس پڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں اینڈ اٹ از اونلی این مومنٹری تھنگ۔ اینی بڑی؟ شمیم، نشاد، کویشچن سمجھ آیا؟
باجی جو جیسے آپ نے وہ لنگوسٹک سیمیٹری سے سمجھایا تھا تو ہوں ماشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. لائک آئی کین ایکچولی ریلیٹ وین آئی ایم ریڈنگ ناؤ کہ پہلی آیت ایسی ہے اور تیسری آیت لاسٹ آیت ایسی ہے کہ اللہ کو کوئی تھکاتی نہیں ہے, اللہ کی کرسی از وائڈ. ناؤ آئی ایکچولی انڈرسٹینڈ دا میننگ اینڈ ریڈ اٹ, اور اس سے بہت خوش ہوا ہے. الحمدللہ. الحمدللہ, دیٹس گڈ. اوکے, اس کے بعد آیت 255 آیت الکرسی کے بعد آیت 256 ہم نے پڑھی, اور اس میں بھی مجھے ایک کویشچن پوچھنا ہے. See, because of this questioning and going back, کیا ہوتا ہے وہ چیزیں ہمارے دماغ میں فٹ ہونے لگتی ہیں. کیا پڑھے تھے 256 میں؟ لا اکراہ فی الدین, نہیں ہے کوئی زبردستی اسلام میں. یو کی ناٹ فورس اسلام اپون اینی بڑی, یہ زبردستی کا دین نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اللہ نے بالکل کلیئرلی فرق کر دیا ہے گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس کے بیچ, ہدایت اور گمراہی کے بیچ اللہ نے بالکل کلیئر فرق کر دیا ہے. ہم نے وہ بھی ایگزامپل لیے تھے کہ ہم ایک انگلی اٹھاتے ہیں وہ اللہ کی طرف کہ اللہ ایک ہے, باقی ساری انگلیاں جھک جاتی ہے. پھر ہم نے پڑھے طاغوت کے بارے میں. فَمَن یکفر بالطاغوت, پھر جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت کی ڈیفینیشن کیا پڑھے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا ہوتا ہے طاغوت؟ What is طاغوت؟ فہیم آنٹی. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت اس کے برابر کھڑا کرنا طاغوت ہے. جی سرکشتا. اوکے, یہ کیوں کھڑا کرتے ہیں طاغوت کو؟ اب تھوڑا الگ اینگل سے دیکھیے, بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی ہے ایوری ڈے. کیوں طاغوت کو کھڑا کرتے ہیں؟ شاہدہ. باجی اس سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کے سوا. ویری گڈ, وہ مدد چاہتا ہے انسان, اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. کمزور ہاں, انسان کمزور ہے. اوکے شاہدہ, تم کیا کہہ رہی ہو؟ جلدی جلدی بولو. نشاط, شاہدہ بولو جلدی. شاہدہ. See, we don't have so much time. طاغوت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک بات سمجھنے کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم انسان کو اللہ نے بنایا ہے بہت کمزور. We are all weak and we need help. We need support. تو دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کا سپورٹ چاہیے ہوتا ہے نا, ماں کا, باپ کا, بھائی بہن کا, رشتہ داروں کا, باس کا, فرینڈس کا, کلیگز کا. ہم کو گھر میں کام والی چاہیے, میڈ چاہیے, کوئی ہمارا ٹوائلٹ صاف کرے, کوئی ہمارے روڈز کلین کرے, وہاں پر ایک RTO ہو جو ٹریفک مینیج کرے. سو دس سسٹم, وی نیڈ ہیلپ آف ایچ ادر. اکیلے یہ دنیا نہیں چل سکتی ہے, ہم کو ہر ایک کی ضرورت ہے, رائٹ؟ تو یہ تو ضرورتیں ہماری ہو گئی. اس کے علاوہ ہمیں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, جیسے یا تو کوئی بیماری ہو, کوئی تکلیف ہو, مصیبت ہو, کسی کے اوپر فائنینشیل کنڈیشنز آئے, فزیکل کنڈیشنز آئے, کسی کی زندگی, موت, آؤٹ آف کنٹرول, اس میں کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تب انسان کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی, اور اس وقت وہ جو سہارا ڈھونڈتا ہے وہ اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ سہارا صحیح ہے یا غلط ہے. اوکے, بٹ اسے سہارا چاہیے. تو اسی لیے قرآن میں بھی اس آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے کلیئرلی فرما دیا ہے, اللہ نے کلیئر کر دیا ہے واٹ از رائٹ اینڈ رانگ, کیا ہدایت ہے اور کیا گمراہی ہے. تو اس کے بعد
इंसान जो है ना उसको अल्लाह ने फितरत पे पैदा किया है. एंड व्हाट इज द फितरत ऑफ इंसान? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फितरत? बाय नेचर. कैसा नेचर देकर पैदा किया इंसान को कि वो किसी के आगे झुके. अल्लाह ने हमें किस पर्पस के साथ पैदा किया है? जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. तो दिस इज आवर बेसिक नेचर कि हम इबादत करें, दैट वी वर्शिप. बट ये फ्री विल दिया अल्लाह ने कि तुम जिसकी चाहो उसकी इबादत करो. बट अब गाइडेंस भी मिल गई कि इबादत किसकी करो. तो अब इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया फमन यकफुर बित्तागूती, फिर जो इनकार करे हर तागूत का, एवरीथिंग बिसाइड्स अल्लाह, कह दे कि नहीं मैं नहीं करूंगा उसकी इबादत. वयुमिन बिल्लाह, और वो ईमान लाए अल्लाह पर, और वो पकड़ ले उसके कड़े को, एंकर को मजबूती से, फिर नहीं टूट सकता वो सहारा. और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है. अभी इस आयत को मैंने फिर से रिपीट किया. वी टुक 10 minutes, but this 10 minutes very important. Now my question comes कि इस आयत में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या नजर आई? हमारा सबका फोकस किस पर है? जल्दी जल्दी बोलो आप. आई डोंट हैव सो मच टाइम. शाइस्ता. बाजी अल्लाह के कड़े को मजबूती से थाम लेना है. ओके गुड. देखिए हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा. शमीम बोलो जल्दी जल्दी. बाजी कोई और सहारा नहीं ढूंढना है. देयर शुड बी वन पॉइंट फोकस, दैट इज अल्लाह. दैट इज ऑल. ओके ओके. ये आपको सब मॉरल्स मिल रहे हैं, लेकिन ये आयत किस तरफ जा रही है वो समझ आ रहा है. तो जब तक वो आंसर नहीं मिलता है मैं पूछने वाली हूँ आप लोगों से. शाहिदा. बाजी इंसान फितरत, झुकने वाली की फितरत बनी है, फितरत का है, तो उसको कोई ना वो कोई मैंने चेक. बता दिया. जो मैंने नहीं बताया है वो बताओ मुझे. मैंने जो बता दिया है वो मत बताओ. निशात. बाजी हमको ईमान को मजबूत रखना है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कहीं पर भी सहारा नहीं खोजना है. दैट्स माय पॉइंट. ओके. सब खदीजा सहारे आंटी. जो है, सब सहारे जो है खत्म होने वाले, फानी है. सिर्फ एक ही सहारा है जो हमेशा रहने वाला है, बाकी है वो है अल्लाह की जात. ओके. आंसर सबके सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है कि जो मैंने नहीं बताया, जो इस आयत में छुपा हुआ है, और ये बात हमने डिस्कस नहीं किए थे ट्यूसडे के दिन या पिछली क्लास में. दैट्स व्हाई आई केम बैक टू दिस पॉइंट. अभी आप प्लीज गौर से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट. इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आसिया वांट्स टू ट्राई, लेट हर ट्राई. अस्सलाम वालेकुम. बाजी ये शिर्क की तरफ जा रहे कि अगर हम किसी को फॉलो, शिर्क की तरफ अल्टीमेटली हमें लेके जा रहे हैं कि हम शिर्क नहीं कर सकते. ओके ठीक है, ये सब समझ में आ गया. अभी जब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो आप आयतों पर देखिए, आयत पर ध्यान रखिए. हु इज शेयरिंग द स्क्रीन? आयत 256 शेयर कर दो. देखिए इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया, कोई जबरदस्ती नहीं है. ओके, फिर फरमा दिया, हमने बता दिया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या हिदायत है और क्या गुमराही. ओके, उसके बाद फरमाया अल्लाह ने कि जब हमने हिदायत दे दी, यानी कुरान आ गया, रसूल आ गए, अब इसके बाद फमन यकफुर बित्तागूती, फिर जो ऑलरेडी तागूत के पीछे पड़े हुए थे, यानी जो ऑलरेडी शिर्क में पड़ा हुआ था, अब उसे समझ आ गई कि ये गलत है. कुरान नाजिल होने के बाद, रसूल आ जाने के बाद, फमन यकफुर, अब उसे गाइडेंस मिल गई, तो उसने गलत रास्ता छोड़ दिया. फमन यकफुर बित्तागूती, फिर जिसने छोड़ दिया तागूत को, शिर्क को, वो समझ गया कि बस एक ही है सुपर पावर. देयर कैन नॉट बी 100, देयर कैन नॉट बी 1000, देयर कैन नॉट बी 2, ओनली 1.
तो जो समझ गया और जिसने शिर्क को छोड़ दिया और फिर वो ईमान लाया अल्लाह पर और फिर उसने मजबूती से पकड़ लिया, ये सहाबा इकराम की तरफ इशारा है। तो जब उन्होंने ये ट्रांजिशन किया, दे लेफ्ट बिकॉज दे वर ऑल आइडल वर्शिपर्स, वो मुशरिक थे ना सहाबा इकराम भी, तो उनको समझ आ गई बात, तागुत छोड़ दिया उन्होंने। हमने आयतल कुर्सी पढ़ लिए, हमने आयत 256 पढ़ लिए, अब क्या हमने अपने तागुत को छोड़ा है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। हमारा तागुत कोई आइडल वर्शिपिंग नहीं है। हम जानते हैं आज हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम है आई मी माई सेल्फ, मैं अपने आप को बड़ा समझती हूँ, मेरी पावर, सब हर एक मेरी बात माने, बस मैं जो चाहूं वही हो। ये आज हम सब की प्रॉब्लम हो गई। फिर पैसा, फिर शो ऑफ, रियाकारी, इंस्टाग्राम चेक कर लो आप, फेसबुक चेक कर लो, अल्लाह अकबर, हर एक नुमाइश कर रहा है। एवरीबडी वांट्स टू शो टू अदर्स। ये शो ऑफ का जो जमाना आ गया है, यही तो तागुत है। तो नाउ इफ वी ट्रांजिट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस टू वन फोकस, अल्लाह, ईमान, तो फिर अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। वो तो है ही सब कुछ सुनने वाले, जानने वाले। नाउ यू गॉट व्हाट द पॉइंट वाज? हु अंडरस्टूड इट? कौन इसे रिपीट कर पाएगा जो बताया मैंने शॉर्ट में? मुझे आज का पुराने जमाने का जो तागुत था, दैट वाज फ्रॉम आइडल वर्शिप टू ईमान। आज का जो तागुत है वो है हमारी नफ्स, आई मी माई सेल्फ, पावर, स्टेटस, शो ऑफ, रियाकारी, जिसके पीछे हम पड़े हैं। एंड वी शुड लीव ऑल दैट एंड गो टू आवर मेन लॉर्ड, दैट इज अल्लाह। दैट इज एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो ऐसा करेगा, ये इसी को कहते हिजरत, इसी को कहते जिहाद, अटमोस्ट स्ट्रगल विथ योर ओन सेल्फ, अपने साथ तुमको बहुत, यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, अपॉन योर बिलीव्स, अपॉन योर वर्शिप, अपॉन योर थिंकिंग, तब इंशाल्लाह ये काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया। फिर 257 अल्लाहु, अभी now we are moving to next आयत 257 अल्लाहु, अल्लाह, वलीयु, वो वली है। अल्लाह कौन है? वली है। वली दोस्त, कैसा दोस्त? कैसा दोस्त? हर मुश्किल में काम आने वाला दोस्त। अल्लाह कैसा दोस्त है? हर मुश्किल में काम आने वाला दोस्त। ये क्यों आया? क्योंकि ऊपर आया कि तुमने हर तागुत को छोड़ दिया, हर सहारे को छोड़ दिया और तुम अल्लाह के पास आ गए, तुमने उसी को अपना सहारा बना लिया। तो अब देखो क्या हो रहा है इन रिटर्न। नाउ यू नो व्हाई आई रिपीटेड दैट आयत, so that you understand this ayat. Okay. अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया और तुम मेरे पास आए, तो मैं कौन बन गया तुम्हारा? अल्लाहु वलियु, अल्लाह बन गया तुम्हारा दोस्त। कैसा दोस्त? जो तुम्हारी हर काम में मदद करे। सुभान अल्लाह। किसकी? अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों की जो ईमान लाए, जो अल्लाह पर ईमान लाए। अब तुम्हें नहीं पता है, बट अल्लाह जानता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी मदद क्या कर सकता है अल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए? डू यू वांट टू नो कि अल्लाह क्या करता है हमारे लिए? कुछ चीजें जो हमें नजर आती है कि अल्लाह हमें खिलाता है, पिलाता है, उसने हमें माँ बाप दिया, सांसें ले रहे हैं, आंखें काम कर रही है एंड एवरीथिंग। बट कुछ चीजें जो हमें नजर नहीं आती ना, वो अल्लाह ताला हमें बता रहे कि मैं क्या करता हूँ एज अ फ्रेंड। युखरिजुहुम, वो निकालता है उन्हें, वो निकालता है उन्हें। ही रिमूव्स देम, कहाँ से? मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से। वो तुम्हारा दोस्त है ना अल्लाह,
वो क्या करता है, ईमान वालों को निकाल बाहर करता है, कहाँ से, मिनज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों से, फ्रॉम द डार्कनेस, किस तरफ, इलन नूर, नूर की तरफ, उजाले की तरफ, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अब ये डार्कनेस एंड लाइट, ये जो दो वर्ड्स है, इसके अंदर भी खजाना छुपा हुआ है। विल गो टू दैट इंशाल्लाह। अभी क्या आगे फरमाया, वल्लज़ीना कफरू, अभी ऑपोजिट में वो लोग हैं जो अभी भी कुफ्र में है, शिर्क में है, अभी भी तागूत के पीछे पड़े हैं, उनका क्या हाल है, व औलियाउहुम, उनके दोस्त कौन है, जो अभी भी शिर्क में पड़े हैं, कुफ्र में पड़े हैं, उनका दोस्त कौन है, औलियाउहुम, उनके दोस्त, अत्तागूतु प्लूरल फॉर्म में आ गया, बहुत सारे तागूत है उनके, उनके बहुत सारे सहारे हैं, और वो उनके तागूत क्या करते हैं उनके लिए, उनके दोस्त, युखरिजूनहुम, वो निकालते हैं उनको, मिनन नूरी, नूर से, इलज़्ज़ुलुमाती, अंधेरों की तरफ। नाउ लुक एट द स्टार्क डिफरेंस, ऑपोजिट, कि ये तागूत क्या करते हैं, ये उनको उजाले से अंधेरे की तरफ ले जाते हैं, फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस। उलाइक, यही लोग, अस्हाबुन नार, वो साथी होंगे, कंपेनियंस होंगे आग के, जहन्नम की आग के, हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, ever after they are going to abide in the hellfire. Allahu Akbar. Now can you see the opposites? क्या क्या opposite मिल रहा है हमको, जिन्होंने तागूत को छोड़ दिया और अल्लाह को अपना सब कुछ बना लिया, तो अल्लाह उनका दोस्त बन जाता है। I just love this part. और ये जो वर्ड आया ना वली, who will tell me the meaning of वली? वली का मतलब समझ में आता है किसी को? और यहाँ पे किसको वली बताया गया और किसका वली बताया गया, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। जिसने ईमान लाए उसका वली अल्लाह ताला। वेरी गुड। अभी वली का मीनिंग बोलो जरीना, यू आर वेरी गुड, क्लियर। वली मीन्स एवरीथिंग, सरपरस्त, जो गाइड करे वो, मतलब जो Okay. साथ दे, सच्चा दोस्त, वही। ओके इतना समझ में आया। किसी और को कुछ और बताना है मुझे वली के बारे में? जरीना ने जो बोली इट इज राइट, जी बट अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना वली बताया था, दोस्त। ओके जल्दी जल्दी बोलो फहीम आंटी, निशात। बाजी वली का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रेंड। ओके व्हाट डज दैट मीन? गहरा दोस्त वली। ओके गहरा दोस्त वली। निशात प्रोटेक्टिंग फ्रेंड को डिफाइन करोगी? बाजी a friend who saves us from all kind of trouble. He deflects us if there's any damage coming towards, he will move us from that. ओके यू आर वेरी क्लोज, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब? वो दोस्त जो हमें गिरने से बचा ले, मतलब जहन्नुम से बचा ले। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये जो आपको आयत में से मिला, अभी आप ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए कि दोस्त दो तरह के होते हैं, दोस्त दो तरह के होते हैं। एक दोस्त होता है, दोनों दोस्त आपके वेल विशर है, दोनों खैर खा है, लेकिन एक दोस्त है कि वो आपके पास आ जाए मुश्किल वक्त में, आपके लिए खड़ा हो जाए, पर वो आपकी मदद चाहकर भी नहीं कर सकता, वो चाहकर भी आपको बचा नहीं सकता, कितना भी वो चाहे कोशिश करे, बट उसकी पावर ही नहीं, उसकी ताकत ही नहीं, उसकी लिमिटेशन है। ये एक दोस्त है।
اور اللہ وہ دوست ہے کہ وہ چاہتا بھی ہے تمہاری مدد کرنا اور وہ تمہاری مدد کر بھی سکتا ہے. اسے کوئی نہیں روک سکتا تمہاری مدد کرنے سے. You get my point? So Allah is the protecting friend who has all the capacity to protect you. Now that is wali. And ye wali, jab Allah tumhara wali. You see the difference? आपका दोस्त आए और आप कोमा में पड़े हो, वो दोस्त खड़ा है, रो रहा है, दुआएं कर रहा है, डॉक्टर को बुला रहा है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता है. लेकिन अल्लाह आपका वली है तो वो उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, और वो करना भी चाहता है. वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि तुम उस पर ईमान लाए, क्योंकि तुमने सारे सहारे छोड़कर अल्लाह को पहचान गए कि यही मेरा रब है और यही मेरा सहारा है जो मुझे कभी भी रुसवा नहीं करेगा. तो वो दुनिया में अब नाउ यू नो वली का मतलब. क्लियर नाउ? समझ आया शमीम? निशात? जी बाजी, बहुत क्लियर. एग्जैक्टली. और ये एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग प्लीज लिखते चले, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल लाइक दैट. ओके. लेकिन जब मैं आपको बताती हूँ तब मुझे भी समझ में आती है बातें, और मजा भी आता है, और ईमान भी बढ़ता है, और अल्लाह से मोहब्बत भी बढ़ती है. अल्हम्दुलिल्लाह. सो ये अल्लाह फरमाते हैं कि ये तुम्हारा वली, तुम्हारा अल्लाह वो करेगा. अब सिर्फ खाना पीना नहीं खिलाएगा तुमको, सिर्फ तुमको सांसें नहीं देगा, वो तुम्हें निकालता है अंधेरों से. नाउ वी विल राइट कि ये कौन से अंधेरे हैं. लिख लीजिए कौन कौन से अंधेरों से अल्लाह निकालेगा हमको. नंबर वन शिर्क के अंधेरे से. नंबर 2 कुफ्र के अंधेरे से. नंबर 3 लिख रहे हो ना आप, यू हैव टू गो फास्ट. नंबर 1 शिर्क के अंधेरे से. नंबर 2 कुफ्र के अंधेरे से. नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट जहालत के अंधेरे से, दैट इज इग्नोरेंस. अब हमें इल्म मिल रहा है ना, आज हमने सीखा ना वली का मतलब क्या है, तागूत क्या है. तो अब जब हमको नॉलेज मिल रही है तो क्या हो रहा है, हमारा वो अंधेरा छट रहा है ना, आ रहे ना हम नूर की तरफ. isn't it? So very important कि जहालत का अंधेरा, इग्नोरेंस से अल्लाह हमें निकाल रहा है. नेक्स्ट है नाफरमानी का अंधेरा, जो हम डिसओबीडियंस, नाफरमान थे अल्लाह के, अब कैसे धीरे धीरे फरमा बरदार बन रहे. देन नेक्स्ट इज तकब्बुर का अंधेरा. तकब्बुर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? व्हाट इज तकब्बुर? ईगो, बहुत बड़ा. उसके बाद मायूसी का अंधेरा. आज हम सबकी मायूसी खत्म हो जानी चाहिए. कौन से एक वर्ड की वजह से, कौन सा वो लफ्ज हमने आज सीखा जिसकी वजह से हमारी मायूसी खत्म होनी चाहिए? वली. वली. वेरी गुड. अल्लाह इज माय वली. फिर मुझे मायूसी किस बात की? सो मायूसी का अंधेरा छट गया. ओके. देन लालच का अंधेरा, लिख लीजिए लालच का अंधेरा. उसके बाद मुनाफिकत, हिपोक्रेसी का अंधेरा, डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी का अंधेरा. नेक्स्ट है नाशुक्री का अंधेरा, नाशुक्री. नेक्स्ट है हसद का अंधेरा, जलन, जेलसी. नेक्स्ट है बेसब्रेपन, बेसब्रा. हम सब कितने बेसब्रे थे, अब क्या हो रहा है, थोड़ा पेशेंस आ रहा है, टॉलरेंस बढ़ रहा है. उसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हो. झूठ का अंधेरा, गीबत का अंधेरा, कंजूसी का अंधेरा, है ना. ये सारे हमारे क्या हो गए, कम होते गए. और अल्लाह ताला अब हमें किसकी तरफ ले आ रहे हैं, इसके सब के ऑपोजिट्स अगर हम आप घर पे लिख लीजिएगा, ऑपोजिट्स ऑफ ऑल दिस, कि अल्लाह ने हमें शिर्क से निकाला तो किस तरफ ले आया. व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ शिर्क? तौहीद.
तौहीद, वेरी गुड। फिर कुफ्र से निकाला तो उसका ऑपोजिट क्या है? कुफ्र का ऑपोजिट पता है कि नहीं? ईमान। कुफ्र का ऑपोजिट इज ईमान। मायूसी का ऑपोजिट क्या है? खुशी। नहीं, मायूसी का ऑपोजिट क्या है? उम्मीद। उम्मीद, वेरी गुड, यू हैव होप। तो ये सब कुछ आप ऑपोजिट्स लिख लीजिए कि अल्लाह ने हमें कौन से अंधेरों से निकाला और कौन से नूर की तरफ ले आया। ओके, वो आपका होमवर्क है। इस आयत में एक और बात हमें मिलती है, वो है सिराते मुस्तकीम, कि अल्लाह जो है जब हमें अंधेरों से निकालता है तो जो नूर का रास्ता है, वो नूर का रास्ता सिर्फ एक है और वो है सिराते मुस्तकीम। अब सिराते मुस्तकीम पर चलना हमारे लिए क्या हो गया है? आसान हो गया है। कैन यू सी दिस पिक्चर? क्या है हाथ में? टॉर्च। और पूरा माहौल कैसा है निशात? हाउ इज द एनवायरनमेंट? अंधेरा है बाजी। अंधेरा है। अब ये हाथ में टॉर्च है ना, ये कुरान है। अल्लाह ने अल्लाह के कलाम के जरिए हमें अंधेरे से निकाल कर सीधा रास्ता बता दिया कि हम अंधेरों में से भी कहीं भटके ना, गुमराह ना हो, और हमें नूर वाला, उजाले वाला एक रास्ता बता दिया। नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन, नाउ यू कैन फोकस ऑन दैट पाथ एंड मूव अहेड। अभी ये शैतान क्या करता है? आगे अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग इसे नहीं, अल्लाह पे ईमान लाते, तो वो भटके हुए, दे डोंट नो अब किसका सहारा ले। और सारे सहारे अल्लाह के सिवा कैसे हैं? सारे सहारे कच्चे, कमजोर। क्या वो तुम्हारे वली बन सकते हैं जैसे अल्लाह बनता है? क्या कोई और ये कैपेसिटी रखता है कि वो तुम्हारी हर हाल में मदद कर सके? कर सकता है कोई? नहीं बाजी। माँ बाप तक बेबस हो जाते हैं ना, है ना, हम बेबस है ना, वी हैव लिमिटेशंस। अगर माँ बाप कमजोर है तो वो बुत, वो आइडल्स जो खुद जिंदा भी नहीं है, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था हम जानते हैं। तो जो खुद को नहीं बचा सकते वो तुम्हें क्या बचाएंगे? तो बिकॉज तुम उनके पीछे जा रहे हो, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? वो तुमको उजाले से अंधेरों में लेके जा रहे हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, यू आर नॉट गेटिंग एनी गाइडेंस फ्रॉम देयर, तो तुम वापस डूब रहे। अल्लाह अकबर, वो तुम्हें डुबा देंगे। गॉट इट? यही लोग सारे जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब देखिए आज भी क्या होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आज आप, मैं, जो भी, हम लोग भी बहुत बिगड़े हुए और जाहिल, वी वर सो इग्नोरेंट। अब जो थोड़ा कुरान का इल्म मिल रहा है, और अगर हम अल्लाह के बनने लगे हैं, बनने लगे ना, कितने लोग अल्लाह के बनने लगे? अभी जरा हाथ ऊपर करें। हाउ मेनी ऑफ अस को अब अल्लाह से मोहब्बत हो गई है और हम अल्लाह वाले बनने लगे हैं? तो सोसाइटी में इसकी क्या रिएक्शन है? आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके फ्रेंड्स की? हर एक को अच्छा थोड़ी लगता है। तो अभी क्या हो गया, हर एक इनसिक्योर हो रहा है आपकी तरफ से। शमीम, इनसिक्योर हो रहे आपके, आपका सर्कल हो रहा है ना, कि शमीम तो हमारे साथ अब शॉपिंग नहीं आती, शमीम हमारे साथ पार्टी नहीं करती, शमीम हमारे साथ मूवी नहीं चलती। तो दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इनसिक्योर अबाउट यू, नाउ वो तुम्हें रोकने की भी कोशिश करेंगे, वो तुम्हें फिर से समझाने की भी कोशिश करेंगे कि इतना भी क्या भाई, हम भी मुसलमान हैं, इतना भी क्या कुरान वाला बन जाना, इतना भी क्या तुम क्लासेस करते हो, दोपहर में 3 बजे बोलते हो क्लास है, रात में 9:30 बजे कहते हो क्लास है, फिर बोलते हो क्लास का होमवर्क करना है। ये क्या है? तुम आती हो पार्टी में तो हमारे साथ गपशप भी नहीं करती, क्योंकि तुमको गीबत भी नहीं करनी।
So now they are objecting. और जब तक ये ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे, दैट मीन्स यू आर गोइंग वेरी स्लो. तो हम में से कुछ अभी भी कमजोर है, क्योंकि हम सब इंसान कमजोर है. तो अगर हम उनके बातों में आ गए तो क्या हुआ, हम थोड़े नूर की तरफ आए थे, फिर अंधेरे में जाने लगे. फिर क्लास में आए, फिर थोड़ा नूर की तरफ आते, फिर कोई इम्पैक्ट होता है, फिर अंधेरे में जा रहे. तो ये ट्रांजिशन चलता रहेगा जब तक के हमारा ईमान मजबूत नहीं होता. और कुछ होते हैं कि फिर वो डामाडोल होके फिर उन तागूत के पीछे, दुनिया के प्रेशर, सोशल प्रेशर के पीछे वो फिर से अंधेरों में चले जाते है ना. दे स्टॉप, दे लीव, छोड़ देते हैं वापस इसको. क्यों? क्योंकि अंदर से कमजोरी है और ये शैतान स्ट्रांग बन रहा है बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर. और ये हम सबके साथ हो रहा है. तो वी हैव टू स्टैंड स्ट्रांग. फिर से ये वाली आयत को याद कर लेना है कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामना है. अल्लाह मेरा वली है, दैट्स इट, फुल स्टॉप. इसका ये मतलब नहीं कि हमको सारी दुनियादारी छोड़ देनी है, सारी रिश्तेदारियां छोड़ देनी है. नो, बट वी हैव टू बैलेंस. और ये बैलेंस करने में मेरा फोकस मेरे वली पर, मेरे अल्लाह पर हो, दैट्स इट. इंशाल्लाह मेरी लिमिटेशंस है कुरान, सुन्नत, हदीस. मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूंगी इंशाल्लाह. क्योंकि ऑप्शन तो दो ही है, या तो जन्नत या जहन्नम. यहाँ पे फरमा दिया कि जो अंधेरे में डूब गया वो जहन्नम की आग में जाएगा हमेशा के लिए. अल्लाहु अकबर. अभी भी अगर ये आयतें समझ नहीं आई है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने अच्छे दोस्त है. जब आपको आपका दोस्त कोई बात समझाता है और आप नहीं सुनते हो तो आपका दोस्त क्या करता है? शमीम, आपको एग्जाम्पल देकर, किसी की स्टोरी सुनाकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं? जी बाजी. है ना. व्हाट डू यू डू? लाइक कल मेरी एक फ्रेंड आई थी, वो बीमार है. शी इज अ कैंसर पेशेंट. So I was convincing her for going to a particular doctor, for going for a particular treatment, because I have experienced that with my daughter. तो मैंने उनको एग्जाम्पल्स दिए, स्टोरीज बताई, कुछ समझाया, कुछ उन्होंने मुझे बताया. अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे वली है ना. अब वो हमें ये सब कुछ जो हमने आयतल कुर्सी से लेके यहाँ तक पढ़े, तागूत एंड ये रस्सी को थामना, और आयतल कुर्सी में हय्युल कय्यूम और शफाअत, ये सब कुछ अब अल्लाह ताला हमें 3 स्टोरीज में बताने वाले. 3 स्टोरीज. एंड ये 3 स्टोरीज सिर्फ 3 आयत में हो जाएगी. ओके, सो नेक्स्ट 3 आयत विल बी 3 स्टोरीज और मे बी मोर. तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. इंशाल्लाह वो हम मंडे, ट्यूसडे को पढ़ेंगे. आज मुझे आपके साथ कुछ और रिफ्लेक्शंस शेयर करने हैं जो आप ही की तरफ से आए हैं. वो रिफ्लेक्शंस सुनने से पहले अभी के आप मुझे रिफ्लेक्शंस दे दीजिए जो आपने अभी सीखा. ओके, जल्दी से, क्विक. बाजी, अल्लाह ताला हमारा सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा वली है. वी डोंट नीड टू लुक फर्दर. अगर हमने ये रस्सी थाम ली तो इट इज डेफिनेट गारंटीड कि हम कभी भी नहीं बहकेंगे. तो इंशाल्लाह मैं ये रस्सी जरूर थामूंगी. इंशाल्लाह. वेरी गुड. नेक्स्ट. बाजी, आज मुझे ये आई वाज सो इग्नोरेंट, मुझे आज ये पता चला कि क्या अंधेरों में से हम दूर जाते हैं. और अंधेरे किस टाइप के होते हैं, जैसे शिर्क का, कुफ्र का, जहालत का, नाफरमानी का, तकब्बुर का. ये सब एक तरह से इट इज लाइक अ डार्कनेस पुलिंग अस टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड वी डोंट रियलाइज इट. बट अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दिस आयत बट दैट वाज वेरी क्लियर हो गया. थियोरेटिकल. That जी was very theoretical. बाद में जो डिस्कशन हुआ कि जी your friend is going to pull you back, your यस relatives are going to pull you back and you have to stand firm. तुम जाओगे भी तो वापस आना है, वापस आना जी है बाजी इंशाल्लाह. या इंशाल्लाह. शायदा. अस्सलाम वालेकुम बाजी.
वालेकुम आज की सलाम। आयत से ये पता चला है कि जब अल्लाह हमारा दोस्त बनता है तो वो हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आता, नूर की तरफ। इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारा वली बने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो हमारा वली बन गया, अब हम अल्लाह के दोस्त कैसे बने, ये हमारे लिए चैलेंज है ना। अंजुम जल्दी बोलो। दोस्त के मतलब वली का मतलब भी आज समझ में आया ना कि दो किस्म के दोस्त होते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पे कादिर है, वो जब हमारा फेवर करना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता ना। वो अल्हम्दुलिल्लाह कब हमारी मदद करना चाहेगा, जब हम जब उसकी हम भी उसकी बात हाँ, मानेंगे, उसकी बात है ना। मानेंगे, शीत हाँ से उससे बचेंगे तो इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, वेरी गुड। कौसर, कौसर काजी। बोलो जल्दी जल्दी। हमको ये जो नूर की टॉर्च जो हमको अल्लाह ताला दिखाता है, उसको हमको उसके ऊपर चलने की अल्लाह हमको नेक तौफीक दे, हम पीछे मुड़कर कभी ना देखे, ये हमारी दुआ रहेगी हमेशा हमेशा। इंशाल्लाह आमीन। ये हो नहीं सकता कि हम पीछे मुड़ के ना देखें, बट देन अगेन यू हैव टू बी फोकस्ड अहेड इंशाल्लाह। नहीं माँ। अब अजय अस्सलाम वालेकुम। वली वालेकुम में सलाम। समझी खाली अल्हम्दुलिल्लाह वही रहता दोस्त वली, लेकिन वो दोस्त दो कसर के मददगार दोस्त वली, हाँ ना फरमानी यानी अल्लाह से वो, और मायूसी, अल्लाह से मायूसी कभी नहीं होना, लालच बुरी चीज है, शिर्क से बचना, ना शुक्री से, ये सब अल्लाह ताला की कैटेगरी में है। अल्लाह ताला ये सबसे बचाए। वली दोस्त वही हो सकता है अल्लाह के अलावा, कि जो कोई कर ही नहीं सकता अल्लाह के अलावा दोस्ती, इतना ना फरमानी करने के बावजूद फिर भी जी अल्लाह में थामे है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाजी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुशखबरी सुना रही हूँ आपको, जल्दी बोलो। जल्दी बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मैंने आपकी दुआओं से खुद का घर भी ले ली, बगैर डिवोर्स के, ब्याज के, बगैर लोन के, सब कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। और एक बहुत नहीं मुबारक। 2 घर दे दिया अल्लाह ताला, तो कितनी बड़ी अल्लाह ताला वाली दोस्त मेरा बना। माशाल्लाह, बहुत लोन मुबारक। का और ये देखो अल्लाह को वो वली बनने का नतीजा वो कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। नईमा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी इंशाल्लाह। अभी हम आपके ही शेयर किए हुए रिफ्लेक्शंस सुनेंगे इंशाल्लाह। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि और भी रिफ्लेक्शंस आप लोग शेयर कीजिए, तो आए हैं मेरे पास। तो एज आई हैड प्रॉमिस्ड हम सुनेंगे। फर्स्ट इज फ्रॉम शमीम। Assalamualaikum warahmatullahi आवाज आ wabarakatuh. रही है? Quran has become a personal guide. It's like a mirror to me. कैन यू हियर शमीम? मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी जी है बाजी। ये। ओके मुझे हर बात में जब भी कोई तकलीफ, जब भी कोई थॉट दिमाग में रहता है, तो बस आई टर्न टुवर्ड्स द कुरान एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंटेंटमेंट। मुझे हर बात का सल्यूशन मिलता है उससे। दूसरी बात यानी कुरान क्लास में आने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है, और इससे बहुत खुशबू मिल रही है। नमाज में बात समझ में आ रही कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू यू बाजी। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझ पे थोड़ा बहुत सब्र आ गया है। देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल बहुत सब्र आ गया है। और जब भी यानी स्पेशली मेड्स के ऊपर अगर गुस्सा करना है तो आई थिंक ट्वाइस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने खादिम पर कितना सब्र दिखाते थे। एंड आई स्टॉप देयर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बाजी कि अभी ज़बान पे जिक्र रहने लगा है। अर्लियर आई यूज्ड टू वेस्ट माई टाइम इन म्यूज़िक एंड watching TV and all that, but abhi I utilize my time constructively. I feel कि ज़बान पे हमेशा जिक्र रहता है and I keep away from all that, at least I try to. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग जो चेंज आई है मेरे लाइफ में कि छोटी बड़ी जब भी कोई तकलीफ़ आती है तो मैं सब्र कर लेती हूँ ये सोच के कि इससे मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, अल्लाह ताला मेरी आजमाइश ले रहा है और बस मैं इसमें पूरा उतरना चाहती हूँ। और ज़बान पे हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह रहता है हर चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड शमीम। Farina, what is this for 13 minutes you have sent? This is too big.
I will share it with everybody on the group. Muqaddasa. Assalamu alaikum. Muqaddasa, Surah Baqarah, Ayat 238. Hafizu ala salati was salwatil wusta وقوموا للہ قانتین. یہ آیت نماز کے احکامات میں سے ایک ہے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمازوں کی حفاظت کی ذمہ داری سمجھاتے ہوئے نماز کی طرف راغب کر رہے ہیں. نماز ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے اور ذکر الہی اسلام کی روح ہے. نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے اور عامل کی اساس ہے. نماز سے بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بخیر خوبی انجام دے سکتا ہے. سب سے افضل اور پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے اور اسے اول وقت میں ادا کرنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہے کہ نماز کی حفاظت کرو اور اس کی حدود کی نگرانی کرو. صلاۃ الوسطی سے مراد درمیانی نماز ہے، نماز عصر ہے، تو اس کی خاص حفاظت کرنے کا حکم ہے. نماز اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے دی گئی ہے، تو کہیں ہم درمیانی وقت میں غافل نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت اپنی نفس کے ساتھ جہاد کا وقت بھی ہوتا ہے. تو جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہے. تو کھڑے رہو عاجزی کے ساتھ اور برقرار رکھو اللہ کی یاد کو، اس کی حمد کو. آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ کریں. یہاں قانتین پر زور دیا گیا ہے، یعنی کھڑے رہو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ اور رکوع میں جاؤ پوری عاجزی کے ساتھ. تو انشاءاللہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کروں گی اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ. اوور. الحمدللہ، بہت اچھا. with your poetry, with your شاعری, you have summed up very well مقدسہ. ایک ریفلیکشن آیا ہے چیٹ فارم میں. یہ رقیہ آپا کہتی ہے کہ انجم باجی I am not comfortable with audio recording, so please read out my message. Alhamdulillah, since the time I have started Quran classes, my nagging, my stress and depression have stopped. Subhanallah. I analyze the situations before reacting. دیکھیں قرآن کا اثر ان پر. کہتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں ریئیکٹ کرنے سے پہلے میں انالائز کرتی ہوں سچویشن. I am trying to be a good ambassador of Islam. Subhanallah. Alhamdulillah, my duas include the ummat in general. دیکھیں ان کی دعاؤں میں پوری امت اب شامل ہو گئی ہے. My husband and especially my son, who is also realizing the benefits of saying namaz on time. کہتی ہے کہ ان کی فیملی میں اب ان کا بیٹا نماز پڑھنے لگا ہے وقت پر. That too at the مسجد جا کر. MashaAllah. Now Allah has to say kun fayakun for him to start reciting the Quran seriously. تو دیکھیے کہ اللہ تو کن فیکن آلریڈی کر چکا ہے. اب جو ہے توفیق مانگنی ہے اللہ سے، لیکن کوشش بھی کرنی ہے کہ وہ اب قرآن حدیث کے ساتھ سیریسلی پڑھنا شروع کرے. جزاک اللہ خیرہ. ایکسٹرا بلیسنگز فار بینگ سچ لونگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیئرنگ ٹیچرز. دیٹ واز رقیہ آپا. ماشاءاللہ. نیکسٹ از زینب. السلام علیکم، میرا نام زینب ہے فرام میسور. I like the ayat 153 of Surah Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. O you who have believed, seek help through patience and the prayer. Indeed, Allah is with the patient ones. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں. ہر مشکل کی حالت میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر از نو نیگیٹو ریئیکشن, رادر اٹس رسپانس وداؤٹ اینی ریئیکشن. ایوری ون ول بی ٹیسٹڈ, سو آزمائش میں وی ہیو ٹو ڈو صبر, اینڈ عبادت میں وی ڈو صبر. اینڈ عبادت از سم تھنگ وچ وی ڈو
zikr and shukr. So when you are tested, Prophet would always do namaz, and in namaz he would ask for help, because salah is the connection between us and Allah. My takeaway from here is कि सब्र करना चाहिए हमें गुनाह छोड़ने पर, नेकी की काम पर सब्र करना चाहिए, लाइक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका. मुसीबत के वक्त वी आर सपोज टू डू सब्र. एंड जब हमारी जो पहली आजमाइश जब हमारे ऊपर पड़ती है, द फर्स्ट ऑनसेट ऑफ द आजमाइश वी आर सपोज टू डू सब्र, क्योंकि क़यामत के दिन एक पुकारने वाला पुकारेगा फरिश्ता कि सब्र करने वाले कहाँ हैं, उठे और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाए. तो देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन दिस. My takeaway from this ayat is that if I can implement these two things in my life, able to do sabr, because indeed everyone will be tested, and when you do sabr, it's like you're calming yourself down, and salah, which I think I myself don't use it as a form, as a connection of Allah. I just do it as it is an obligation. If I can truly implement that, when I am in trouble, I get the tawfiq that I go pray to Allah subhanahu wa ta'ala and I can imbibe patience, then I think any amount of hardship or any amount of trials or any amount of happiness, you are going to be sane, and that is the most important thing to live life, I think. Zainab, alhamdulillah, I could hear, I could sense the pain, the hardships that you're going through. और वो भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है, हमारी औलाद हमारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश है. And it is not easy to bring up your children and to be patient at the same time. तो तुमको राइट टाइम पे कुरान मिला है, और तुम्हारा जिहाद, तुम्हारा स्ट्रगल भी अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खूब आसान कर दे. और जो आखिरी में तुमने कहा कि नमाज हम सब एज अ रिचुअल, एज अ इबादत हम पे फर्ज है तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब नमाज हमारी जिंदगी में वो मकाम ले लेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था, कि जब भी कोई मुश्किल आती तब नमाज, जब भी कोई खुशी होती तब नमाज, जब सब्र चाहिए होता तब नमाज. तो जब ये हमारी भी सिचुएशन हो जाएगी इंशाल्लाह, then we are in the win-win situation inshallah. Too good, Zainab. May Allah bless you and your children. Next is Shahida. अस्सलाम वालेकुम बाजी. मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 154 की आयत करना चाहती हूँ. इसमें या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन. ये आयत मैंने इसलिए चुना कि इसमें सब्र के साथ नमाज पढ़ो, और सबसे बढ़ ये है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है. तो जहाँ अल्लाह साथ है तो वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. भले उस वक्त तकलीफ़ें आती है, लेकिन उसका जो खैर, उस शर के साथ जो खैर होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह. और सब्र का मतलब है हलाल काम करने से शैतान की वसवसों से रोकना, और हराम काम के लिए नफ्स को रोकना, हराम काम करने के लिए नफ्स को रोकना, और मुसीबत के वक्त सब्र करना. तो अल्लाह ताला ने मतलब ये जो आयत आई है कि ऐ ईमान वालों अदा करो नमाज सब्र के साथ और अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये बिल्कुल सब्र वालों के साथ बिल्कुल सही है कि बाजी मतलब हाँ अल्लाह ताला साथ में है. कि मेरे साथ कुछ ऐसे हालात भी हुए हैं कि मैंने मतलब कोई चारा भी नहीं था, सब्र भी करना था, और मैंने कहा अल्लाह ताला तुझ पे मैंने छोड़ दिया. तो हकीकत में वो बदला अल्लाह ताला ने
لیا. لیکن میں یہ چاہتی ہوں بولنا کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کا راز بھی نہیں کھولتا ہے. اور یہاں ایک لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم اس سے بدلہ لے لیتے ہیں. ماشاء اللہ بدلہ لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کسی کو ظاہر بھی ہونے نہیں دیتا. اتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل کرے اور ہمیں صبر جیسی نعمت ہم کو دے انشاءاللہ تعالیٰ. سب آمین آمین. ویری گڈ شاہدہ. نیکسٹ از شاہین سمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ باجی آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. آئی ایم ناٹ دیٹ ریگولر بٹ میں پوری کوشش کرتی ہوں الحمدللہ کہ میں جوائنٹ ہوں. بٹ بائی چانس ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے ہسبینڈ اسی وقت آتے اور کھانے کا وقت ہوتا ہے. اسٹل آئی پٹ مائی ایئر پوڈز اینڈ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. آئی ووڈ لائک ٹو سے 152 کی آیت فَاذْکُرُونِی پھر یاد کرو مجھے اذکرکم تو میں یاد کروں گا تم کو واشکروا اور شکر کرو لی میرے لیے ولا تکفروا اور نہیں تم ناشکری کرنا یا ناشکر میں سے ہونا. تو یہ آیت سے ہم لوگوں کو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوئی بھی بات ہو تو ہم کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اینڈ دس میں نے پرسنلی میری بہت سی لائف میں ابھی لاسٹ 5 ایئرس سے بہت دیکھا ایکسپیرینس کیا ہے کہ ماشاءاللہ جب صبر کیے اور میں نے یہی کہا کہ اللہ تو نے یہ کیا اس میں کچھ بہتری ہوگی الحمدللہ. تو وہ مطلب اللہ کا شکر ایسا ہوتا ہے کہ آگے جا کے اس کا رزلٹ پتہ چلتا ہے کہ ہاں دس واز فار دا گڈ فار می. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر. تو وہ سب سے بیسٹ ہی کریں گے, ہی بہترین کریں گے ہمارے لیے. تو اس سے مطلب توکل بھی بڑھتا ہے ماشاءاللہ. اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے تو اللہ اور ہماری نعمتوں میں اس کا اضافہ کرتا ہے. تو ہم بار بار زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے, دل سے بھی, قلبی بھی اور ظاہری بھی. یعنی گروپس میں بھی کہیں بھی جاؤ تو ہم اللہ کی ٹاپک کا ذکر کریں. تو اس میں ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ کہتے کہ تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, اور اگر تم محفل میں یاد کرو گے تو میں تم کو فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ. شاہین ان اسپائٹ آف آل دی آڈز تم پھر بھی جوائن کر لیتی ہو, اور اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کے لیے. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر پھر اس سے بہتر محفل میں کرتے ہیں, تو اللہ سے دعا کروں گی کہ جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہے, جو بھی جوائن کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے, ہم سب کی مغفرت پر سٹیمپ لگا دے, ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات دے دے اور ہم سے راضی ہو جائے. الحمدللہ. اسپیشل مینشن آف مائی فرینڈ ریتا, جو انہوں نے اس دن امپرومپٹو ٹیوزڈے کے دن اپنا ریفلیکشن دیا تھا. اینڈ بہت اچھا ریفلیکشن تھا ریتا. اباؤٹ تم نے رمضان کے بارے میں کہا تھا کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, شیطان کو قید کر دیتے ہیں. سو ایم سو گلیڈ. ہم سب دعا کریں گے ریتا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان سے نوازے, ریتا کو, اور اس کے دل کو اسلام کے لیے, ہدایت کے لیے, ایمان کے لیے کھول دے, اور اللہ ریتا کا بھی ولی بن جائے اور اسے اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے انشاءاللہ. ریتا, what would you like to say? Actually, it's my birthday today. Oh, Rita, alhamdulillah. So many congratulations. May Allah bless you. Thanks, dear angel friend. And may you be happy always. Ameen. And may your heart be filled with the belief, with Iman, and may Allah guide you. سب کے لیے دعا. اسپیشلی آج آپ کے لیے ہو گئی. ہم کو پتہ نہیں تھا کہ آج آپ کا اسپیشل ڈے ہے, بٹ see, this is from Allah's side that we wished you unknowingly. Yes. Alhamdulillah. Okay? Chale. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.